میرے آج کے مہمان حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے احمد مختار پٹواری صاحب، ڈسٹرکٹ انفارمیشن ان کے پاس عہدہ ہے، اور دوسرے مہمان میر عبد الرحمان صاحب جو سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں احمد مختار سے۔ احمد بھائی، قصور میں پی ٹی آئی اس وقت کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علیہ وسلم تسلیما۔ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی، جس کی چند ایک میں مثالیں دوں گا۔ صحت کارڈ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی تعلق کے اور بلا وہ تفریق کے حکومت نے لوگوں کو مفت علاج 7.5 لاکھ روپے کے عوض میں وہ علاج کی سہولت فراہم کی ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور مجھے کارڈ نہیں ملا، میرا پی ایم ایل این سے ہے مجھے کارڈ نہیں ملا، میرا کافلک سے ہے مجھے کارڈ نہیں ملا۔ ایسا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ حکومت نے بلا تفریق ہر بندے جو پاکستان شہری ہے ہر بندے کو وہ کارڈ کی سہولت مند دی ہے۔ اسی طرح لاک ڈاؤن جو کرونا کی وبا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اس کے دوران حکومت نے 12,000 خاندان کو جو ادا کیے اس میں بلا تفریق، اس میں کسی کی سفارش، کسی کی ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں تھی، کسی ٹکٹ ہولڈر کی ریکمنڈیشن نہیں تھی۔ اور اس حکومت سے پہلے جتنی پارٹیاں وجود میں آئیں، اقتدار میں آئیں، وہ اپنے لوگوں کو اوبلیج کرتے تھے۔ ان کو ایم پی اے ایم این اے کے پاس فارم جمع ہوتا تھا، وہ ان کو ریکمنڈیشن کرتے تھے، ان کا نام ڈالا جاتا تھا، پھر ان لوگوں کو اوبلیج کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جنہوں نے بلا امتیاز بلا تفریق لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بابا جی کو بھی شامل کر لیتے ہیں آپ کی بات کے ساتھ، کیونکہ بابا جی بھی اکثر ہسپتال میں جاتے آتے ہیں۔ بابا جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا جو فرما رہے ہیں کہ جو ہر پاکستانی کو کارڈ مل چکا ہے، میرے خیال میں ابھی 25% لوگوں کو بھی کارڈ نہیں ملا۔ اچھا، اور اگر کارڈ ملا ہے تو اس کارڈ پہ آپ ہاسپٹلوں میں جا کے چیک کریں، وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ کرونا کی وبا آ گئی، 12,000 روپے فی خاندان دیا گیا۔ 12,000 روپے فی خاندان جس طریقے سے دیا جا رہا ہے، لوگ جس طرح سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان میں بھی کچھ پیرامیٹر انہوں نے یہ تو کہتے ہیں سیاسی دخل نہیں، انہوں نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا سارا ڈیٹا اٹھا کے انہیں لوگوں کو دے دیا۔ ہم وہ لوگ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں جن کے گھر میں اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو اس میں شفافیت والی بات جو ہے نا، وہ تو ان کی بالکل غلط ہے۔ شفافیت اگر ہوتی تو بالکل غریب لوگوں تک پیسہ پہنچتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک اچھی کوشش ہے، ایک اچھا ایفرٹ ہے اس حکومت کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی بات کریں تو یہ خود ہی بتائیں گے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو قصور میں اس وقت موجود ہے اس کے حالات کیا ہیں۔ 35 لاکھ کی آبادی کی تحصیل قصور ہے، جس میں 10 لاکھ شہر کی آبادی گن لیں اور باقی 25 لاکھ گردونواں میں دیہات موجود ہیں، اور جہاں پر صرف 10 بیڈ جو ہے وہ کورونا کے مریضوں کے لیے۔ اچھا بابا جی، جو ہیلتھ کارڈ بنائے ہیں انہوں نے، اس پر علاج جاری ہے؟ نہیں، اس پہ علاج بھی جاری ہے اور کرپشن بھی جاری ہے۔ اچھا، اگر آپ پھر بات وہی آئے گی، کہاں سے عمران خان ایماندار لوگوں کو لے کے آئے؟ خود اس کی کابینہ میں جو شامل ہیں ان پہ بڑے بڑے دبے ہیں، تو عوام سے وہ کیسے لے آئے؟ کارڈ تو دے دینا، کوئی بات نہیں، کارڈ مل گئے، کارڈ پہ علاج پراپر نہیں مل رہا جس طرح سے ملنا چاہیے۔ احمد بھائی آپ، میں اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ میرا، آپ کا، مظفر قادری صاحب کا، یہ سب کا پاکستان ہے۔ یہ ایک مزدور کا بھی پاکستان ہے اور ایک سیاستدان کا بھی پاکستان ہے، ایک تجزیہ نگار کا بھی پاکستان ہے، ایک ڈاکٹر کا بھی پاکستان ہے، یہ مریض کا بھی پاکستان ہے، اسکول ٹیچر کا بھی پاکستان ہے۔ یہاں پہ ہم سب کو ایفرٹ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ شفافیت کس طرح ہوگی۔ میں اکیلا آدمی اگر چاہوں تو نہیں کر سکتا، یہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اچھا دوسرا بندہ کرپٹ ہے۔ بابا جی، یہ شکایت صرف قصور میں ہے یا ویسے سارے پنجاب میں یا پاکستان میں ہے؟
नहीं, सारे पंजाब में अगर नहीं होगी तो शायद KPK में ना हो, क्योंकि वो एक छोटी आबादी वाला सूबा है, वहाँ पे तो हो सकते हैं उन्होंने अकोमोडेट सबको कर लिया हो। ये पंजाब है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की सियासत में इस सूबे का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के आजकल ख़ास तौर पर वस्ती पंजाब और जिस इलाके में हम रह रहे हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल PTI ने इन लोगों को खुदा के रहम करम पे छोड़ रखा है। अभी मेरे ज़राए ने हमें बताया कि डेरा इमरान खान के इलाकों में और डेरा गाजी खान के इलाकों में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इधर तो हमारी जो लाहौर कसूर की एक अच्छी सड़क थी, आज वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। किधर है इनकी डेवलपमेंट? अच्छा, कसूर में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, आपकी तंजीम की PTI के हवाले से बात करने लगा हूँ कि इसके कुछ जिसमें आप भी शामिल हैं और मेरे पास सरवर हमीऊ का नाम भी है, महर सफदर इकबाल है, अली लोहार है, ये बड़े पुराने इंसाफी हैं। लेकिन जब से इक़्तिदार में जमात आई है, ये आपके अलावा कोई नज़र नहीं आता, कोई इंतज़ामिया के साथ कोई काम करता हुआ, कोई क्या वजह है, क्या बात है? जी, आपकी बात दुरुस्त है। कसूर में जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं वो सरवर खान में वो जिन्होंने पाकिस्तान तरीके का झंडा थामा और इमरान खान का साथ दिया, बल्कि हमें भी सरवर खान साहब ने मुझे और सफदर इकबाल साहब को और अली रज़ा लोहार को और एक हमारे साथी थे शायद परवेज़ कसूरी साहब, वो भी हमारे साथी थे उस वक़्त। तो ये लोग हैं 5 लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ का जो शुरू से जो काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तक उनके साथ खड़े हैं। तो जहाँ तक ये है कि ये नज़र नहीं आते, ऐसी बात नहीं। सफदर इकबाल साहब डिस्ट्रिक्ट के लेबर विंग के ज़िम्मेदार हैं और मेरे पास डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मैं ज़िले का। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है और ये पार्टी की मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की वजह से आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ या अगर आज मुझे शहर में लोग जानते हैं, अगर मुझे अल्लाह ने ज़बान दी है तो वो इमरान खान की वजह से है कि मैं आज हक़ाइक़ के मबनी बात कर सकता हूँ। तो सब कुछ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क़यादत को चाहिए कि वो जो आपके वर्कर्स जो होते हैं औलाद की मानंद होते हैं, तो जब तक इनके सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो ये कुव्वत में नहीं आएंगे। इक़्तिदार जो है ये वक्त है कि पार्टी को बनाने का। नहीं, हाथ कैसे रखें अहमद भाई? इधर एक आदमी है आपकी जमात का, उसके पास काफ़ी सारे ओहदे हैं सरकारी, तो आप भी समझते हैं, तो क्या वो ओहदे सिर्फ एक आदमी के लिए ही हैं? क्या वो दूसरे को नहीं मिल सकता कोई ओहदा? काजी साहब, जिस एक आदमी का आप नाम ले रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वो कौन आदमी है, लेकिन मैं बता देता हूँ सर, मैं नाम ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। कैसर जो विषय है सोशल मीडिया पर आप देखें, अक्सर लोग उसकी बात करते हैं कि सारे ओहदे उसके पास हैं, बड़े गिले शिकवे बनते हैं सर। वो आप आज खुल के बताएं ना, क्या वजह है, उसके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? सर कैसर जो विषय को कौन नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ, सारे शहर जानता है, लेकिन मैं आपने नाम नहीं लिया था इसलिए कह बात यह कि इनके बारे में तो मैं सर आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप बताएं ना। मैं बताता हूँ, 2013 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब का, और उस वक्त थे मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे मुजफ्फर हसन शाह कादरी साहब, उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा था सिटी कसूर। वो बता सकते हैं कि अगर उस वक्त जो लोग थे उनको कितना साथ दिया PTI का उन लोगों ने, या उसके बाद 2018 आप ऐसा करें ना, आज इस प्रोग्राम में ना आप बता दें, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, आप बताएं एक आदमी के पास इतने ज्यादा ओहदे क्यों हैं, और बाकी के जो कारकुन हैं जो सोशल मीडिया पर भी शो डालते हैं, वैसे भी मिले तो गिले शिकवे करते हैं, क्या ये नाइंसाफी नहीं इंसाफ में? सर मैं बताता हूँ ना जी आपको, उसके बाद 2018 में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे सरदार आसिफ अहमद अली साहब जो फखरे कसूर भी हैं और साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो बता सकते हैं। मखसूस अंसारी साहब जिनके वालिद ग्रामी अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में मकाम दे, 5 मरतबा कसूर की तारीख में इलेक्शन और 5 मरतबा विन किया, तो वो कैंडिडेट थे, वो बताएंगे कि अगर वो आदमी जिसके पास इतने ओहदे हैं। सर 5 दफ़ा वो देखे ना इलेक्शन विन किया, और आखिरी दफ़ा जो आप लोगों ने उनके साथ किया, क्या ये दुरुस्त है? किसके साथ? सरदार साहब के साथ। सरदार ये पार्टी की देखे ना, जानो माल के साथ सर आपकी पार्टी मुकम्मल उसके साथ थी,
सर हम पार्टी के साथ थे और मैं पार्टी के साथ थे, सरदार आसिफ के साथ थे। मैं अपनी जात की बात करता हूं कि मैंने इलेक्शन दिन से लेके यानी कि वो जब अच्छा, एक छोटे से सवाल का अपना छोटे से सवाल का जवाब दें, क्या एमएनए और एमपीए एक प्लेटफार्म पे थे? क्या आपकी जमात उनके साथ थी? जी बिल्कुल, एमपीए एमएनए एक प्लेटफॉर्म पे थे। इख्तलाफात घर में भी हो जाते हैं, दो भाइयों में भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं थी कि वो इख्तलाफात थे नहीं। मेरा अगर है, अगर अभी भी हैं, भाई मैं अगर आपके कहने में बात कर रहा हूँ, नहीं आप बताएं ना, वैसे थे या हैं? इख्तलाफ नहीं थे, अभी हैं, कोई वैसे किसी बात अभी वैसे हैं, नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। कुछ थोड़े मैं बहुत इस जगह को बाबा जी से पूछ लेते हैं। गपशप में है, जी जी टाइम से माहौल ना बनाया। जी जी बाबा जी, पीटीआई का मंशूर है यूथ को लेके चलना। ठीक, यूथ का नारा था, यूथ ने इनको वोट दिए। अब जब यूथ के लिए ऊपर से एक आप 80 साल का बाबा ला के बिठा देंगे तो फिर यूथ क्या करेगा? यार बता दिया आपको बाबा जी ने, ये आप क्यों नहीं बात करते? सारी बात ये है कि ये पार्टी का फैसला था, मेरा फैसला नहीं था। मैं बताऊं। अच्छा चले आगे चलते हैं अहमद भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी ना, अगर सिटी कसूर में टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है मेरे पास, मेरी बात सुनिए। आपकी बात सुन रहे। सिटी कसूर के लिए मैंने एमपी के लिए टिकट खुद अप्लाई किया था। मैंने पार्टी की जो फीस थी वो जमा करवाई, टिकट फॉर्म जमा करवाया। लेकिन अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैंने पार्टी का साथ दिया है। जी ठीक है। अच्छा, ने पार्टी के लिए टिकट जमा, इलेक्शन के लिए टिकट के लिए अपना कागजात जमा करवाए थे। अच्छा, टिकट नहीं मिला पार्टी। अभी अगर बलदियाती, एक मिनट बाबा जी, अगर अभी बलदियाती इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो क्या आपकी पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए? इंशाल्लाह बिल्कुल। कि फिर भी ये इख्तलाफात नजर आएंगे? इख्तलाफात नहीं है, इख्तलाफात नहीं है वो। नहीं आपके, अच्छा चलो ये बता दें आप कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कितने दरों पर मुश्तमिल है? सर मैं ये समझता हूँ, ये धड़े होते हैं ना, ये पार्टी का सियासत में हुस्न होता है और यहाँ पे इस्लाह होती है। और दूसरी बात, ये हर पार्टी में धड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है, इंसाफ की बात। ठीक है, ठीक। किसी भी पार्टी को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, काफी को ले लें, पीएमएल को ले लें, किसी भी पार्टी को ले लें, वहाँ पे धड़े मौजूद होते हैं। जी ठीक है। ये नहीं कह सकते सिर्फ, लेकिन इधर एक ही धड़े को नवाजा जा रहा है। ये लोगों की शिकायत है, आपके वर्करों की, कारकुनों की शिकायत है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। मैं एक बात जानता हूँ, अगर शिकायत है कारकुनों की तो मैं अपनी क़यादत से ये कहूँगा, मैं उनसे अपील करूँगा अपनी क़यादत से। मेरे पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं इजाज़ चौधरी साहब, और मैं समझता हूँ कि हमें सियासत में उन्होंने ही हमारी उंगली पकड़ के हमें कसूर से जब ज्वाइन किया था तो इजाज़ चौधरी साहब ने हमें पार्टी ज्वाइन करवाई थी। तो आज मैं उन्हीं से यही इल्तमास करूँगा, मैं उनसे ये अपील करूँगा, अगर कसूर में कोई धड़े हैं तो वो आएँ, उनको एक जगह पे बिठाएं और उनके मसाइल जो है उनकी शिकायत सुनें। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।